اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے جی، اور آیت نمبر ہماری ہے 282۔ میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا، اس آیت کا نام آیت دین ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کے بھی نام ہے، جیسے آیت البر پڑھی ہم نے، پھر آیت الکرسی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب یہ آیت آیت دین کہلاتی ہے۔ دین کہتے ہیں لین دین کو، قرض کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قرض کے لین دین کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آیت پڑھیں گے ترجمہ اور الفاظ کے ساتھ، پھر اس کے احکام پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تو آرڈر کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ جو ابھی ایمان نہیں لایا اس کے لیے آرڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی اسلام کے قوانین ہیں نا، وہ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان ہوگا تو قانون لاگو ہوگا نا۔ تو غیر مسلموں پر ڈنڈے اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں، پھر چاہے وہ توہین رسالت کا معاملہ ہو یا قرآن کا معاملہ ہو، ہے نا۔ وہ اصل میں ہمارے لیے قوانین ہیں۔ جو ہے غیر مسلم، اس کے پیچھے کیا پڑنا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ لوگ عزت کریں آپ کے شعار کی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو بس مسلمان ہو گئے تو ہم تو بس جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اتنا لمبا، ماشاءاللہ، 30 پاروں کا جو قرآن ہے، اس کے جو اتنے سارے احکامات ہیں، یہ تو ہیں ہی مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ اتنا قانون، اتنا اصول، ضوابط یہ اللہ نے کیوں بیان کیے؟ اگر خالی کلمہ پڑھنا کافی تھا تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے۔ چلو 100% نہیں تو جتنا پرسنٹ ہو سکے، 50%، 60، 70، 80، کوئی پرسنٹیج تو لانی ہوگی نا۔ تو بدقسمتی سے آج مسلمان بد دیانت ہو چکے ہیں نا۔ جو ہمارا لین دین ہے کاروباری، ذاتی حیثیت میں بھی اور قومی حیثیت میں بھی قابل بھروسہ نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان مسلمان ملک ہے، پاکستان کے ساتھ لین دین لوگ، ممالک جو ہیں وہ آسانی سے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے نا۔ کچھ سال پہلے یورپی یونین نے چاولوں کی خرید کا سارا جو کینسل کر دیا ہمارے ساتھ معاہدہ۔ اب یورپی یونین میں کتنے ملک ہیں کہ یہاں سے جو فرسٹ کھیپ گئی چاولوں کی، وہ ملاوٹ شدہ تھی۔ اوپر اچھا چاول تھا اور نیچے خراب۔ تو وہاں پر تو آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کی ہیلتھ وغیرہ کو لے کر۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے منسوخ کر دی، اور سارا چاول پھر انہوں نے کس سے لیا؟ انڈیا سے۔ اچھا، دوہرا دکھ ہوا نا مجھے تو۔ مجھے تو دوہرا دکھ ہوا، ایک تو ہمارا معاہدہ کینسل ہوا اور دوسرا بھارت کو مل گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگلوں کو صحیح چیز چاہیے، اور ہم صحیح چیز ہوتے ہوئے اس طرح کی ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا کردار نہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، موضوعات کو بدل دینا، چیزوں کو بدل دینا، یہ لین دین میں دیانت کے خلاف ہے نا۔ ریٹ چیزوں کے غیر معمولی زیادہ دینا، جائز منافع تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن غیر ضروری لگا دا جس کو کہتے ہیں، جس کو نہیں پتا اس سے جتنے چاہے پیسے اینٹھ لو۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں اور دھوکہ دہی والی۔ مگر انڈیویجول دکانداری میں بھی یہ چلتا ہے ہمارے یہاں پر، اور نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں بھی ہم ایسے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساکھ خراب۔ اچھا، عربوں میں یہ نہیں ہے۔ عربوں میں جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی ہے تجارت کی دیانت، یہ ہے ان میں۔
वो बाहैसियत तिजारत ताजिर दयानतदार है। आप उनसे पर्सनली भी चीज बाय करें तो जिस मायार की चीज है वही मायार शो करेंगे। सेकेंडली, आपके साथ जब वो डील कर लेंगे तो आपको गलत चीज कभी नहीं देंगे, जो चीज दिखाई है वही देंगे। और जो बात जिस तरह से वो आपसे तय करेंगे पूरी करेंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं ना अरबों का, कि उनके बहुत बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, उनके बड़े काम चल रहे हैं। उसका एक सबब उनकी कारोबारी संजीदगी है। संजीदा है और दयानतदार। और उनके अंदर ना कारोबारी वुसत भी है, इनके जैसे हमारे यहाँ तो आप दुकान पे जाए ना, आप दो चीजें खुलवा लें तो लोगों के मूड खराब हो जाते हैं, तो लैना भी है कि खाली वेखना है। दे बिहेव लाइक दैट। लेकिन हिंदुओं में नहीं है। वो आपको खुद चेक करे, आप देखें तो सही। देख तो ले खाली। तो वो फिर क्या होता है, बंदे का माइंडसेट बन जाता है, जहन में होता है ना, आपको चीज लेनी होती है तो आपको याद आता है उसके पास थी। और ये चीज अरबों में भी मैंने देखी। वो बहुत अच्छे आपको पेश आएंगे। आपने एक चीज लेनी है, आप नहीं भी लेते चीज, आपने देखी आपको नहीं समझ आएगी, आपका रेट नहीं बना, तो वो माइंड नहीं करते। और ये एक ताजर की बहुत बड़ी खूबी होती है। फिर वो आपके साथ बार्गेन करने में भी मूड ऑफ नहीं करते। हम तो जरा सा बार्गेन करें यहाँ पर तो मूड खराब हो जाते हैं। और इस तरह से वो आपको देखते हैं जैसे कि आप कोई घटिया लोग हैं, तो लोग बार्गेन करते हुए घबराते हैं कि शायद लोग हमें घटिया समझेंगे, गरीब समझेंगे। यहाँ पर एक माइंड सेट है। लेकिन आप देखें हिंदुओं में भी नहीं है। वो बार्गेन खुलकर करेंगे, क्योंकि तिजारत में उन लोगों के सेट उसूल है। ये है उनके अंदर खूबी। लेकिन अरबों में ये खूबी बहुत आला है कि वो भी आपसे बार्गेन करते हुए अपसेट नहीं होते। अब जितना चाहे बार्गेन कर लो, करते रहो बहस। और जब एक दफा आपने अपनी जो भी जितना बार्गेन करवा सकते थे करवा लिया, एक कीमत डिसाइड हो गई, तो फिर वो आपको घटिया चीज, खराब चीज नहीं देंगे, वही चीज देंगे जिसके लिए उन्होंने आपके साथ डिसाइड तय की है बात। और आपके साथ बार्गेन हो गया तो उस चीज को दूसरे को भी नहीं बेचेंगे। फर्ज करें एक ही चीज है, यानी एक पीस रह गया, तो दूसरा अगर उसकी ज्यादा कीमत भी देगा तो वो नहीं देंगे उसको। हाँ, वो आपसे सौदा नहीं तोड़ेंगे। ये खूबियां हैं उनके अंदर। तभी उनकी तिजारत इंटरनेशनली इतनी अच्छी चल रही। मगर हम अगले की सिर्फ खामियां देखेंगे कि अयाश हो गए ने, नचदे रहंदे ने। हाँ, वो खराबियां हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो एक्सेल कर रहे हैं चंद खराबियों के बावजूद, तो इसका मतलब है ना चंद खूबियां भी हैं। और वो खूबियां उन खराबियों पर भारी हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक अभी भी उनको टाइम दे रहे हैं। देखें, जो उनमें अयाशी आई है, पहले कुछ अर्सा पहले तक वो बिल्कुल पर्सनल थी। अब थोड़ी उन्होंने कलेक्टिव की है। लेकिन पर्दा कलेक्टिव है, नमाज कलेक्टिव है, तिजारत कलेक्टिव है, दयानतदारी कलेक्टिव है। ये फर्क है। जब तक इज्तिमाई सतह पर बिगाड़ नहीं आता, अल्लाह सजा नहीं देता। तो अभी उनकी खूबियां उनकी खामियों पर भारी है। तो उनको तो हम बड़ी बातें सुना लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ कॉन्सर्ट नहीं चल रहे, हमारे यहाँ फिल्में नहीं बन रही, हमारे यहाँ नाच गाने नहीं हो रहे, कलेक्टिवली हो रहे हैं। और उसके साथ हम बददियानत हैं, उसके साथ हम बदमुआमला चल रहे हैं, उसके साथ हम लोग झूठ बोलते हैं। झूठ तो इतना बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बोलते हैं। यानी कि बेवजह का झूठ है। यानी जैसे पूछ लो कि जोड़ा कहाँ से लिया, तो झूठ बोल देंगे। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ना है? क्या अगले को नजर नहीं आना बाजार में, या पता नहीं चलना, या ना भी चले चलो, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारी बातें उम्र छुपाने का झूठ बोलते हैं। बच्चों के रिश्तों में उम्र छुपाने की झूठ बोलते हैं। बाद में फिर बैठ के लड़ रहे होते हैं। कारोबार के झूठ बोलते हैं। तो यानी मैं, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि यानी कि अजीजा की रिश्ते की जब बात हुई तो बताया गया कि जी लड़के का ये और ये काम है। बाद में पता चला कि अपने दोस्त के पास जॉब करता है। यानी कि उन्होंने भरोसा किया कि जान पहचान वाले, शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि उसका काम नहीं है, वो अपने दोस्त के पास जॉब करते, झूठ बोला उन लोगों ने। और ये बड़ी कॉमन बातें।
तो ये जो झूठ होते हैं ना, किसी कौम के खालीपन का सबूत होते हैं। तो कलेक्टिव लेवल पर हम लोगों में ये चीजें हो चुकी हैं, और इतनी हो चुकी हैं कि इन्हीं बदकिस्मती की ये बात है हमारे लिए, अफसोसनाक बात है कि हम लोग कहते हैं एनजी हूंदा, यानी कि जैसे आपके गलत कीमत बताकर चीज आपको बेच दी, 100 रुपए की चीज थी 500 की बेच दी, आपको पता नहीं था, आपको पता चला तो आप कहते हैं उसने मेरे साथ धोखा किया। तो आगे से जवाब मिलता है ऐसे ही होता है, ये तो आम बात है। आपसे रिक्शा ड्राइवर ने पैसे ज्यादा ले लिए, तो आप घर आए तो पता चला कि जी यहाँ के तो इतने पैसे नहीं है, इतने हैं, तो आप कहते हैं अच्छा मुझसे तो उसने ज्यादा ले लिए। तो जवाब मिलता है लायक थे एनजीओ। कोई सड़क पे कूड़ा फेंक रहा है और आप कहते हैं देखो वो सड़क पे कूड़ा फेंक रहा है, तो जवाब मिलता है ऐसे ही होता है। बाथरूम गंदा छोड़ के निकल गए पब्लिक का, आप गए, आप कहते हैं ओहो मैं गई तो सारा बाथरूम गंदा था, जवाब मिलता है एनजी होता। क्या मतलब है? यानी कि हम किसी मामले में इंसानों की तरह नहीं जिएंगे, तो हमें खुद को बदलना हो। देखिए, जब दुकानों में बड़ी बड़ी आयतें लिखी थी, अक्सर मैं सोच रही थी क्यों बताना पड़ता है कि हम मुसलमान, ऐसे क्यों होता है। क्योंकि हमने इस्लाम को सिर्फ अपना कमर्शियल स्टेटस बनाया हुआ है। ये दुकानों पर आयतें लगाने का मकसद भी है। हाँ, आप जाएंगे ना सऊदीया में, मैं मजाक नहीं कर रही, या आप दुबई चले जाएं, तो वहां आपको इस तरह लिखी हुई आयतें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनको पता है हम मुसलमान हैं, सबको पता है। और वो अपने कारोबार के लिए इस्लाम को यूज नहीं करते एज मटीरियल, हम एज मटीरियल यूज करते हैं। है ना, हमने लिख कर लगाया होता है मिलावट करने वाले पर अल्लाह की लानत हो, और उसके बाद हम वहां मिलावट शुदा चीजें बेच रहे होते हैं। तो इस्लाम हमारे लिए ना अपनी आप को प्रमोट करने का एक जरिया है। लिहाजा एक ऐसी लड़की या औरत जो एक्ट्रेस और मॉडल है, अपना जिस्म दिखाकर कमा रही है, वो भी कह रही होती है अल्लाह के फजल से मुझे ये फिल्म मिल गई। यानी वो अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरते ना, कि खुदा का खौफ नहीं करते कि ठीक है जो कर रहे हैं फिर कहिए जाए, चुपचाप सिर ढा के गुनाह को गुनाह माने, वो इसके लिए भी तैयार नहीं होते। तो इस्लाम जो है ना वो हम लोगों के लिए एक जरिया है, दीन नहीं है। लेकिन अल्लाह इसे दीन के तौर पर पेश करते हैं, इसीलिए अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान ला चुके हो। अब ईमान लाकर एडमिशन ले लिया है तुमने इस्लाम में, तो तुम्हारा ये और ये रास्ता होना ही चाहिए। तो ये सारी आप देखें जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो शुरू होती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। तो हमें ये सब अपने अंदर खूबियां पैदा करनी ही होंगी। हाँ ठीक है, हर खूबी में हम एक्सेल नहीं कर सकते, जैसे आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, सभी में पास होना पड़ता है ना, लेकिन आप सब के अंदर 100/100 नंबर तो नहीं ला सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ना सब्जेक्ट। तो ये सारे भी हमारे पेपर्स ही हैं, जिसमें से एक पेपर दयानतदारी का भी है। तो 100% तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ तो लाएंगे। इजा जब तदायंतुम तुम लेन देन करो, दाल ये नून से जी ये लफ्ज है, और दीन भी इसी से बनता है, दैन भी इसी से बनता है। दीन का मतलब है बदला, और दैन का मतलब है कर्ज उधार। तदायंतुम, तुम बाहमी लेन देन करो, बिदैनिन कर्ज पर, बी साथ हर्फ है, और दैन कर्ज है, दैनुन था, बी ने इसको जेर दे दी, बिदैनिन कर्ज। इला तक हर्फ है, अजल मुसम्मन मुकर्ररा वक्त तक, इला ने इसको भी आगे जो है वो दे दी जेर, अजलिन मुसम्मन, मुसम्मन की ये जेर वाली शक्ल लीजिए है। मुकर्ररा वक्त तक, अजल जमाने को कहते हैं, मुसम्मन तयशुदा। एक मुकर्ररा वक्त तक, एक तवील जमाने तक। वक्त वूहू तो उसे लिख लिया करो, फा हर्फ है, और हु जो है वो जमीर है। उक्तुबू ये असल लफ्ज है, और ये है जी हुक्मिया इंपेरेटिव, जमा है और गायब है, सॉरी हाजिर है, गायब नहीं है हाजिर है। तुम लिख लिया करो, तुम सब लिख लिया करो। वक्त वूहू तो तुम सब लिख लिया करो उसे, यानी ए ईमान वालो, जब तुम आपस में कर्ज का लेन देन करना चाहो लंबे अरसे के लिए, तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम
तुम्हारे माबैन कातिबुन, एक लिखने वाला, बिल आदिल, इंसाफ के साथ, आदिल के साथ, बराबरी के साथ। और एक लिखने वाले को तुम्हारे माबैन इंसाफ के साथ, अदल के साथ लिखना चाहिए। वला, और ना, या बा इनकार करे, अबा से है, अबा का लफ्ज आपने पढ़ा है, अबा वस्तकबरा। हाँ, शैतान ने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, अबा से है, या बा, वो इनकार करे। कातिबुन, लिखने वाला, और लिखने वाला इनकार ना करे, अन के, यक्तुबा, वो लिखे। लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। पहले जमाने में लिखना इतना आम नहीं था ना, अब तो हर, ये बात मुश्किल अजीब लगती है, हर दूसरा बंदा लिखना जानता है, तो वह तब कहाँ जानते थे। तो कोई एक आध होता था तो उसको वॉलंटैरली बहुत कुछ डेली लिखना पड़ता था, तो टाइम निकालना पड़ता था। तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, नखरा मत करना। कमा, जैसा कि अल्लाहू, सिखाया उसको, अल्लाह, अल्लाह ने, फल यक्तुब, तो उसे चाहिए कि लिख दे। जैसा कि अल्लाह ने उसे लिखना सिखाया है, एक इल्म सिखाया है, तो उसको चाहिए कि वो लिख दे। वल युमलिल, और इमला कराए, अल्लजी, वो शख्स जो लिखने का एहतमाम वो बंदा करवाए, डिक्टेट वो बंदा कराए, अलैहि, जिस पर अल हक्कु, हक है, इनके जो कर्ज ले रहा है, कर्जदार जो है, उसको अरेंज कराना चाहिए। किस बात का? लिखने के लिए कातिब वगैरह का। वल यत्तकिल्लाह, और चाहिए कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करे, रब्बहू, जो उसका रब है। लिखने में, इंतजाम करवाने में अल्लाह से डरे। वला, ना, या बखस, कमी करे। बा खासीन से है जी, चीज को कम कर देना, जाया कर देना। तो कमी ना करे, मिनहू, उसमें, शयन, किसी चीज की। अल्लाह से डरे, जो उसका रब है, और लिखने में किसी तरह की कमी ना करे, यानी कि धोखा ना देना किसी को। देखे ना, आपकी रकम 5 लाख है जो कर्ज ली, और लिखवाने में अगर एक जीरो कम कर दो, तो 50,000 रहेगी ना, हालांकि सिर्फ एक जीरो कम की है। तो अगर कातिब के साथ मिलकर उसको रिश्वत देकर मना ले, तो फ्रॉड हो सकता है ना। तो अल्लाह वही कह रहे हैं, फ्रॉड ना करना। फाइन, फिर अगर काना हो, अल्लजी, वो शख्स, अलैहि, जिस पर, अलहक्कु, हक है, सफीहन, नादान, औ ज़ाइफन, या कमजोर, औ या ला, नहीं, यस वो इस्तात रखता, ताकत रखता, अन के, युमिल्ला, लिखवाए, हुआ, वो खुद, फल युमलिल, तो लिखवाना चाहिए, वली, उसके सरपरस्त को, बिल आदिल, आदिल के साथ। जो बंदा कर्ज ले रहा है, जिसके जिम्मे हक है से मुराद जो कर्ज ले रहा है, जो बंदा कर्ज ले रहा है, अगर वो बेवकूफ है, यानी कि कमसिन है, या बेवकूफी की वजह कमसिनी भी हो सकती है, और बेवकूफी की वजह अकल की कमी भी हो सकती है। पागल होने के अलावा भी तो सीधे लोग भी तो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अल्लाह लोग होना, हमारे लोग उर्फे आम में कहते हैं, यानी कि बहुत समझदार नहीं है। तो किसी सबब से उसकी अक्ल में कमी है, औ ज़ईफन, या कमजोर है। कमजोरी के भी कई रीजंस हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, माजूरी हो सकती है, बचपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या किसी और सबब से वो इस्तात ना रखता हो, कोई भी रीजन हो सकती है। कोई औरत कर्ज ले रही है, वो पर्दा नशीने नहीं आई, या कोई किसी भी तरह से इस तरह का मसला नहीं है, पर जिस वक्त काम हो रहा है, जो कर्ज ले रहा है वो कहीं और इन्वॉल्व है, और संजीदगी से इन्वॉल्व है, और वो नहीं पहुंच पाया। तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो किसी भी सबब से वो ताकत ना रखता हो वहां मौजूद होने की, या कर्ज की दस्तावेज लिखवाने की, तो चाहिए कि उसका वली जो है वो लिखवाए, आदिल के साथ। समझ गए? वस्तशहिदु, और गवाह बनाओ, शहीदैनी, 2 गवाह, मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। और जब ये तहरीर हो तो उस पर तुम्हारे अपने लोगों में से, मर्दों में से 2 गवाह होने चाहिए। अच्छा, अपने मर्दों में से मुराद है मुसलमान। हाँ, रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, लेकिन मुसलमान। क्यों? क्योंकि मुसलमान दयानतदार होता है। तो आप देख लें कि हम तो, ये हमारे, यानी कि हमारा हाल ये है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। फाइन, फिर अगर लम ना यकूना, 2 मर्द हों, रजुलैनी, 2 मर्द, यकूना, 2 हों, रजुलैनी, मर्द, फरजुलुन, तो एक मर्द, वम्रातानी, और 2 औरतें हो जाएं। अगर 2 मर्द में असर ना हो तो एक मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लो।
अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जी औरत की गवाही जो है वो मर्द से आदी है। नहीं जी, आदी उदी कोई नहीं है। हाँ, कोई बहुत सारे केसेस है जिनमें औरत की गवाही मानी जाती है। जैसे इद्दत वगैरह के मामलात में, रज़ात के मामलात में औरतों की गवाही मानी जाती है, मर्दों की नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका पता ही औरतों को होता है। और जो हद के मुकदमात हैं उनमें मर्दों की गवाही ली जाती है। एक तो वो सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें कोर्ट कचहरी के लंबे मामले चलते हैं, तो औरतों के लिए दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि जन्नत और जहन्नुम है उन केसेस की झूठी गवाहियों की वजह से। तो औरतों से झूठी गवाही दिलवाना आसान है, मर्दों को मजबूर करना मुश्किल है। ये भी सबब है। अब ये मामला भी ऐसा ही है, आप देखें ना, लेन देन बड़े बड़े जब होते हैं तो उनमें अगर करोड़ों के कर्जे लिए हुए हैं, अरबों के कर्जे लेते हैं, आपको पता है ना ये, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं फिर बाद में फ्रॉड करके भाग जाते हैं। तो बड़े बड़े कर्जे लेते हैं लोग। अब उनमें फिर खवातीन को अगर गवाह बनाया गया तो उनको तो आसानी से डराया धमकाया जा सकता है, उनसे गवाहियां बदलवाई जा सकती हैं। तो मर्दों को निस्बतन बहरहाल ये मुश्किल है, डराना धमकाना या मजबूर करना। और वही बात है कि फिर ये दीवानी मुकदमात होते हैं, तो ये लंबे चलते हैं, सालों चलते हैं। तो फिर औरतों के लिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ जाना, एक बच्ची की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, अब वो वहां से रोज रोज उठ कर आएगी, है ना मसाइल। फिर वो माइंड करे हो सकता है घर वाले कि भाई ये क्या मुसीबत है, तुम रोज अदालत पहुंची होती हो। ये भी तो मसाइल है। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने ये रियायत दी है, रुख्सत दी है कि बंदों को रखो। बंदा नॉर्मली जो है, वो जिस घर में पैदा हुआ है, वो नॉर्मली ज्यादातर बंदे वहीं पर मर्द हजरात रहते हैं। वैसे कहीं शिफ्ट हो जाए तो हो जाए, फिर अपने मामले में आजाद होते हैं, उन्होंने गवाही के लिए जाना है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं कि तू फिर जाना है। तो फिर ओवर द ईयर वो जा रहे हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो ये पाबंदी नहीं है, रियायत है, रुख्सत है। लेकिन बहरहाल अगर मजबूरी हो जाए तो फिर दो औरतें। क्यों दो औरतें, क्यों? बता देते हैं अल्लाह खुद ही। अच्छा, पहले अल्लाह कहते हैं मिम्मन, उनमें से जिनको तर्जाउना तुम पसंद करते हो, मिना शुहदाई गवाहों के तौर पर। वो लोग जिनको तुम बतौर गवाह पसंद करते हो, इतने दयानतदार हो कि तुम्हें उन पर एतबार हो, दोनों पार्टीज को। अगर कोई किसी को नापसंद करता है कि भाई ये तो मुझे धोखा देगा, तो उसको गवाह नहीं बनाया जाए। अच्छे पसंदीदा लोग होने चाहिए। किसको लोग पसंद करेंगे? दयानतदार को, सच बोलने वाले को। आम तजिल्ला, अगर भूल जाए, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, फतुजक्किरा, तो याद दहानी करा दे, इहदाहुमुल उखरा, उन दोनों में से दूसरी एक को। दो औरतें गवाह होनी चाहिए ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। सबब अल्लाह ने खुद बयान कर दिया। अल्लाह कहते हैं औरतें दो गवाह होंगी, अगर एक भूल जाए दूसरी याद करा दे। इसमें एक तो प्रेशर का भी हल है, एक को किसी ने डरा धमका दिया या वो लालच में आ गई तो दूसरी सच बोल दे और उसको अपनी गवाही दुरुस्त करनी पड़े। और भूल भी बिल्कुल जी है, खवातीन के इतने सारे मामलात होते हैं, भूल चूक के इम्कानात ज्यादा होते हैं। मैं तो भाई बहुत भूलती हूँ। तो मैं तो इसीलिए अपने मामलात जो है ना, मेरा हर मामला जो है, मेरी बेटी आयशा जो है उनको पता होता है। मैं कुछ भी लेन देन करूँ ना, तो मैं उसको बताती हूँ स्पेशली। और मैं उसको कहती हूँ इसलिए बताया कि मैं भूल जाऊँ तो याद करा देना। तो लिख के, हालांकि मैं लिख के करती हूँ, फिर भी सम टाइम मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने लिखा था तो ये नहीं कि पिछले दिनों एक पेमेंट थी वो मैंने कर दी, तो मैं खुद भूल गई थी कि मैंने कर दी। फिर मैंने जिसको की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ही लोग हैं सारे मेरे, तो सब ईमानदार दयानतदार हैं। तो मैंने फिर उन्हें पूछा, मैंने कहा मैंने आपको दे दिया है कि नहीं, मैंने काटा ही नहीं कॉपी में से। तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा मैंने काटना भूल गई हूँ कि देना भूल दिए नहीं अभी तक। फिर मैंने उनसे पूछा तो कहती नहीं नहीं, आपने तो तभी दे दिए थे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने काटा। तो ये चीजें जो हैं जिंदगी का हिस्सा है, ये हो जाती। और दिल में शुभों से बेहतर है कि लिख लिया जाए। वला ना यावा, इनकार करें, अशुहदाउ गवाह, इजा जब, जब माँ कभी भी, इजा माँ जब कभी भी, वो बुलाए जाए। गवाह जब भी बुलाए जाए वो इनकार ना करें। आप देखिए गवाही की जरूरत हो सकता है 25 साल बाद पड़े,
15 سال بعد پڑھے. وہی بات ہے کہ جس بچی کو گواہ بنایا گیا تھا اس کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر کہیں چلی گئی. اب وہ کہاں سے اس کو ڈھونڈ کر لائیں؟ بچیوں نے تو جانا ہی ہے. یہ اسباب ہیں. اسلام کا جو سسٹم نا بڑا لاجیکل ہے. پھر اب یہ والی فیملی کھلے مزاج کی تھی، جس میں بیاہ کر گئے وہ نہیں پسند کرتے. شوہر کہتے ہیں نہیں جانا، نہیں دینی گواہی. اب عورت کے لیے تو مسئلہ بن گیا نا. اللہ کا حکم ہے گواہی دو، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے شوہر کی مرضی کے بغیر کام نہ کرو. اب یہ کہتا ہے خبردار تم کرو نکلی میں تیری لتا توڑ دیں گا. اب کیا کرے؟ پھنسا کون؟ بچی، خاتون. اس لیے اللہ پاک نے یہ رعایتیں رکھی ہیں کہ مت بناؤ عورتوں کو گواہ. یہی بہتر ہے. ان کے لیے بھی آسانی ہے، تمہارے لیے بھی آسانی ہے. اچھا فرض کریں کہ جس فیملی کے حق میں گواہی ہے اس فیملی کے ساتھ سسرال والوں کی دشمنی ہے، پھر؟ ہاں، یہ میں نے پرسنلی یہ کیس میں ہوتے دیکھا ہے. ایک خاتون بڑی اچھی، ان کی طلاق ہو گئی. تو اچھی، میری کافی اچھی ان کے ساتھ تھی. تو سارا میں نے دیکھا ان کا پروسیس. ان کے یعنی کہ دیور کا کچھ مسئلہ تھا، ایک کیس تھا، بڑا سویر کیس تھا. تو وہ اس کی آئی وٹنس تھی. تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم گواہی نہیں دو گی میرے بھائی کے خلاف، اگر تم نے گواہی دی میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے بڑے جرم کو لے کر خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں گواہی دوں گی. تو انہوں نے گواہی دی اور اس نے واقعی طلاق دی. تو یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جی. اسی لیے اللہ پاک نے عورتوں کو نا ان سے رخصت دی ہے. مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے. ولا تستمو، نہ تم اکتاؤ، سستی محسوس کرو. ان کے تب تبو ہو، تم لکھو اس کو. صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو. الا اجل ہی، مقررہ مدت تک ہو. تم لوگ اس بات میں تنگ دلی، تھکان، سستی محسوس نہ کرو کہ تم قرض کو لکھو، چاہے قرض کی رقم چھوٹی ہو یا بڑی، جبکہ قرض ایک مدت تک کے لیے ہو. تو قرض لینے میں لکھنے کا اصول ہے زمانہ، قرض کی مقدار نہیں. ذالکم، یہ تم لوگوں کے لیے اقسطو، زیادہ انصاف والا ہے. قسط سے اقسطو ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. واقوم، زیادہ سیدھا ہے. للشہادتی، گواہی کے لیے. اللہ کے ہاں تمہارا یہ طریقہ زیادہ انصاف والا اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے. یعنی لکھا ہوا ہوگا تو گواہ بھی، تو گواہوں کو بھی کاپی ملے گی نا. تو اگر فرض کریں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا تھا، تو نکالو اور پڑھ لو. تو وہ آپ کا ریٹن ایگریمنٹ کا جو ہے پیپر ہے، اس کی کاپی ہے. تو اس پر جو لکھا ہے وہی اصل ہے. وہ ادنا، زیادہ قریب ہے اس سے. اللہ کے نا ترتابو، تم شک میں پڑو. کہ تم شک میں نہ پڑو. شک کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے 5 لاکھ لیا تھا کہ میں نے 50,000 لیا تھا. انسان بھول جاتا ہے. یہ سمجھتا کہ نہیں نہیں میں نہیں بھولتا، نہیں بھول جاتا ہے انسان. اور پھر یہ کہ میں نے دے دیے ہیں کہ نہیں دیے، وہی بات ہے، انسان بھول جاتا ہے. اللہ، مگر یہ ان کے تکونا ہو تجارتن حاضرتن، تجارت حاضرہ. سوائے اس کے کہ تجارت حاضرہ ہو. تجارت حاضرہ یہی ہے جو آپ دکانوں پہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بریڈ دے دیں گے لے پیسے، انڈے پکڑا دیں گے لے پیسے. تو وہ تو لین دین اسی وقت ہو گیا نا. اس کی رسید لو یا نہ لو، دونوں طرح سے درست ہے. اگر رسید لیں گے تو ٹھیک ہے. اب یہ جو رسیدوں کا سسٹم ہے تو انکم ٹیکس کے چکروں میں انہوں نے بنائے. تو نہ بھی ہو رسید تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تو چیز دے دی اور پیسے بھی لے لیے، تو معاملہ ختم ہو گیا. تو تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو بینکم، آپس میں. اگر وہ ایسی تجارت ہو جو اسی وقت ہو رہی ہو جیسے تم آپس میں زندگی کے لین دین کرتے ہو، فلیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، تم اس کو لکھو. بسم اللہ. فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، تم اس کو لکھو. اگر تجارت حاضرہ ہے اور تم نے نہیں لکھا تو گناہ نہیں ہے. لکھنے میں گناہ ہے؟ نہیں، لکھنے میں بھی نہیں ہے. یعنی جیسے آج کل رسید چلتی ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے جیسے چیز وغیرہ ایکسچینج کرانی ہو، کچھ کرنا ہو، تو اس کی بل چاہیے ہوتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
وہ زیادہ آسان ہے ابھی اصل میں. ہمیں ان چیزوں کو، یہ چیزیں ہمیں مشکل نہیں لگتی کیونکہ مشینیں بن گئی ہیں، انک بہت ہے، پیپر بہت ہے. اس وقت میں کہا تھا یہ سب کچھ، تو خاص چیز ہی لکھی جاتی تھی نا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو ٹائم بینگ آپ کے ہیں لین دین ابھی کے ابھی کر رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لانگ ٹرم آپ نے کرنے ہیں آپس میں معاہدے، ان کو ضرور لکھو تاکہ لکھت پڑھت ہو، لکھت پڑھت ہو. اور جہاں لکھت پڑھت نہیں ہوتی وہاں فراڈ ہوتا ہے، اور فراڈ کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے. میں سنجیدگی سے آپ کو کہہ رہی ہوں، وہ تو فراڈ ہی ہے نا. احمق وہ ہے جس نے اپنا پیسہ دیا اور اس کا ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں لی. ہاں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی کیس نہیں سنا جائے گا جس نے کسی کو پیسے دیے اور اس سے ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں لیا. اور قیامت کے دن وہ کہے گا اللہ یہ میرے پیسے کھا گیا. اللہ کہیں گے کون سا کیس؟ تم نے ریٹرن سٹیٹمنٹ لی تھی؟ میں نے کہا تھا نہ لینا. جب تم نے لی نہیں، کیس ہی کوئی نہیں بنتا، بھاگو یہاں سے. اس کو سزا ملے گی وہ الگ بات ہے. اور مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے ہمیشہ، ہمیشہ، جو دین کی سمجھ رکھتے ہوئے یہ والے ٹھڈے کھاتے ہیں. حماقت ہے، حماقت ہے. کیونکہ قرآن کو زندگی کا حصہ نہیں نا بنایا ہوا، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو صرف وظیفوں کے لیے، عمل کے لیے نہیں. تو پھر پھنس جاتے ہیں بےچارے. لیکن دنیا کی عدالت میں بھی جائیں گے تو عدالت کیا کہے گی؟ ثبوت لاؤ. اور اللہ پاک نے بھی قیامت کے دن کہنا ہے ثبوت ہے تھا ریٹرن اسٹیٹمنٹ لئی سی؟ نہیں لئی سی، ناس جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایسے لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ کیس نہیں سنیں گے. تو ان جو چار لوگ آپ نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس نے کسی کو قرض کے لیے رقم دی کسی بھی کام کے لیے اور اس سے اسٹیٹمنٹ نہیں لی، اس کو ریٹرن نہیں کرایا. تو اللہ کہے کہ میں نے کہا تھا نا، نہیں کیا، پھر اب آئے کیوں میرے پاس؟ تو یہ بڑی بے وقوفی ہے. وَأَشْهِدُوا، گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چوری چھپے خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. تہ خانوں میں چھپ کر کر لو، جا کر کوئی موجود نہیں. آپ دکان پر جاتے ہیں ساری مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، آپ اوپنلی خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو جب کوئی بڑا سودا پرسنل لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی گھر بائی کر رہے ہیں، اب وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے تو نہیں کر رہے، تو پھر آپ کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اگلا بھی کسی کو ساتھ لایا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ آپ اسٹامپ پیپر بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ کسی کو پتا تو ہو کیا ہو رہا ہے. تو اوپن مارکیٹ میں ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ پرسنل لیول پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی پرسنل چیز بیچ رہے ہیں، تو کوئی گواہ وغیرہ ہونے چاہیے. ولا یضار کاتب، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، نہ ہی گواہ. یعنی کہ ڈرانا دھمکانا ثبوت بدلوانے کے لیے کوئی پارٹی پریشر ڈالے یا نقصان پہنچائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو یہ بڑی نافرمانی ہوگی، بکم، تمہاری جانب سے. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری جانب سے ایک بڑی نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے. یہ ہے جی آیت دین، قرآن کی سب سے طویل آیت. کیا احکامات ہیں جی؟ سمجھ آ ہی گئے ہیں آپ کو؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے ایسا لین دین کرنا ہو جو کچھ عرصے تک ہو، یعنی آپ نے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دو، میں ابھی گھنٹے میں آپ کو واپس کرتی ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے میں، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 روپے دو، میں آپ کو 6 ماہ میں دے دوں گی، تو اس کو لکھنا چاہیے. ہاں. آپ اگر تو پراپر ڈاکیومنٹیشن کرائیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن ایسا نہیں تو کم از کم اپنی کسی ڈائری پر کسی چیز پر لکھ کر آپس میں اس کی اسٹیٹمنٹ بنا لیں. یعنی کہ یہ بہت چھوٹی رقم ہے نا آج کے دور میں. تو بندہ کہتے ہے کیا میں اس کے لیے اتنا ہیسل کروں، اتنی دوڑ لگاؤں، اٹھنے کا تو اسٹامپ پیپر وغیرہ پہ خرچہ ہو جانا ہے. تو نہ کریں. اللہ نے نہیں کہا کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھنا ہے، اللہ نے صرف لکھنے کا کہا ہے. ہر گھر میں لکھنے والے موجود ہیں، تو لکھیں اور کاپی کے اوپر کر کے
तो सिग्नेचर करके तो तकाजा पूरा कर ले, और जब दे दें वापस तो वो काट दे और इन्फॉर्म कर दे। घर के लोगों को गवाह बना ले, अल्लाह ने कहा ना जिनको तुम पसंद करो, तुम्हारे अपने बंदे। तो इस तरह चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसे फिर लेने देने वाले दोनों गवाह लाए? नहीं, नहीं, ये अरेंजमेंट जो है उसी ने करवाना। ये अरेंजमेंट उसी ने करवाना होता है जिसके जिम्मे कर्ज होता है, कर्ज लेने वाला। लेकिन बहरहाल लोग ऐसे होने चाहिए जो दोनों के लिए काबिल भरोसा हो, बस। तो कोई भी लोग हो सकते हैं, कॉमन जान पहचान के, इसमें कोई कैद नहीं है। तो जब अरसे के लिए लेन देन हो, असल में ये ज्यादातर बड़े कर्जों के बारे में, मैं तो मिसाल में आपको 10,000 कह रही हूँ, जो लाखों के करोड़ों के कर्जे लिए जाते हैं, अरबों के कर्जे इवन लिए जाते हैं, और वो जाहिर है कि एक टाइम के लिए लिए जाते हैं, तो फिर उसमें लिखत पढ़त जरूर कराई जाए। आज ये बात आपको थोड़ी सी अजीब साउंड इसलिए करती है कि आज का लिखत पढ़त आम है ना, उस जमाने में थी नहीं। लिखने वाले कोई कोई लोग होते थे, तो अल्लाह ने उस जमाने में भी हुक्म दिया कि थोड़ी तकलीफ उठाओ, हैसल करो, लिखने वाला ढूंढो। कागज वगैरह कौन सा आम था, कीमती चीज थी, मुश्किल से हासिल होता था। तो आप वो हासिल करें और आप लिखें और तहरीरी मुआहिदा करें, ताकि किसी तरह की कोई खराबी पैदा ना हो। फिर अल्लाह ने कहा कि जिसको मैंने लिखने का इल्म सिखाया है उसे चाहिए कि लिख दे। इस बात का यही मतलब है जो मैंने भी अर्ज किया, कि बहुत कम लिखने वाले थे। आजकल तो हर बंदा ही लिखना जानता है, बहुत कम है जो नहीं लिखना जानते। आज उलट चुकी है रेशो। जिस तरह आज लिखने वाले कम हैं, ना लिखने वाले कम हैं, जिनको लिखना नहीं आता वो कम है, उस जमाने में जिनको लिखना आता था वो इतने ही कम थे। तो उन पर बड़ा जिम्मा रहता था मोहल्ले भर के खत लिखना। इवन आप अपनी अम्मियों के जमाने की तरफ जाएं तो जो है लिखने वाले कम थे, कम लोगों को लिखना आता था। तो जो दो चार बच्चे पढ़े लिखे थे ना मोहल्ले के, तो सारे खानदानों के खत लिख रहे होते थे बैठकर। अच्छा, खत आते थे, उनकी ड्यूटी भी लगती थी पढ़ के सुनाने की। मोहल्ले की सब बड़ी बूढ़ियों को खत, लड़के बाहर चले गए थे ज्यादातर जॉब्स के लिए, तो वो खत आते थे तो फिर वो पढ़ के सुना रहे होते थे सारों को। फिर वो उसका जवाब भी बैठ के लिख रहे होते थे। डाकिए सुनते थे, फिर डाकिए भी डाकिए भी लिख देते थे, बिल्कुल सही कहा आपने, डाकिए भी लिख देते थे। तो ये पिछली नस्ल तक था। तो इसलिए उस वक्त में आप देखें कि एक मोहल्ले में 50 घर हैं और उसमें से एक लड़के को लिखना आता है, तो 50 घरों की लिखत पढ़त उसी के सर पे है ना। तो वो इंसान है, बाजू का इंसान ऊब भी जाता है, अभी मैं आया हूँ, अब मैं बैठा हूँ, अब फिर जाऊं। तो अल्लाह ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने लिखना सिखाया है ना, फजल की है ना तुम पर, तुम्हें लोगों पर फजीलत दी है कि तुम्हें लिखना सिखाया, तो तुम कर दो लोगों का काम, नखरा मत करो, कोई बात नहीं, मुश्किल तो है लेकिन तुम्हें अजर होगा। और लिखने वाला अदल के साथ लिखे, यानी पैसे लेकर फ्रॉड कर सकता है ना, तो ना करे। आजकल तो आपको वैसे ही मुहर्रर मिल जाते हैं ना, वो जो वकील बैठे होते हैं जो आपको स्टैम्प पेपर वगैरह लिख कर देते हैं, तो पैसे लेकर आपको लिख देते हैं। तो उस वक्त ये सहूलत थी नहीं। अब अल्लाह पाक ने दूसरा हुक्म कातिब को दिया, क्योंकि लिखने वाले के हाथ में है। अगर खुद लिखना पढ़ना जानते तो खुद लिख लेते ना। लिहाजा इम्कान है कि जिसके लिए लिखवाया जा रहा है वो लिखा पढ़ा नहीं है, तो फिर धोखा नहीं देना, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। लिहाजा अदल के साथ लिखो, पैसों की खातिर लालच में आकर बददियानती मत करना। ना ही लिखने वाला इनकार करे लिखने से। वो तो वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की, कि वो गए कि ये नहीं, जिनके ने पहाड़ा थे ना पवे, कि मैं नहीं आ सकता, मैनू बड़ा काम है। जरूरत पड़ जाए तो अगले का काम करते। और लिखवाने का जिम्मा कर्ज लेने वाले के सर पर है। जो कर्ज ले रहा है ये उसका जिम्मा है कि वो लिखवा कर दे। और अगर किसी वजह से वो ना लिखवा सकता हो तो फिर उसका जो वली है, कोई तो बिहाफ उसके बिहाफ पर मामला डील कर रहा है ना, तो जो उसका वली है जो मामलात को डील कर रहा है वो लिखवाएगा। यानी कि इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बीमारी वगैरह के अलावा भी कोई रीजन हो सकती है। फर्ज करें कि कोई बड़ा कारोबारी है और वो बाहर है और उसको जरूरत पड़ गई और उसने यहाँ अपने मैनेजर को इंतजाम करने के लिए कहा, तो मैनेजर उसके बिहाफ पर काम कर रहा है ना, तो फिर वो लिखवा कर देगा, वो फिर मुआहिदा पूरा करेगा।
تو इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस बड़े कारोबारों के अंदर होती हैं। अलबत्ता चाहे वो खुद लिखवाए चाहे वली लिखवाए, जिम्मा है कि इंसाफ के साथ लिखवाए, रकम को बढ़ाए नहीं, कम नहीं कराए, किसी तरह का धोखाधड़ी ना कराए। बढ़ाएगा तो खैर वो कभी नहीं, क्योंकि उसको देना है, वो कम ही कराएगा। तो इस तरह का कोई जो है ना धोखाधड़ी, कोई गबन ना करे। लिहाजा अदल के साथ लिखना और लिखवाना जरूरी है। इसके अलावा मजीद सेफ साइड रखते हुए दो गवाह मुकर्रर करो। ये गवाह मर्द होने चाहिए और अपने लोगों में से यानी मुसलमानों में से होने चाहिए, और जान पहचान के ऐसे अफराद हों जिन पर आप भरोसा करते हैं। राहगीरों को आप गवाह नहीं बना लेंगे, जान पहचान के लोग हों ताकि बवक्त जरूरत उनको गवाही के लिए बुलाया भी जा सके। अगर दो मर्द मैसर ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हो सकती हैं। औरतें दो क्यों हैं जी, हमने अभी डिस्कस किया ही है। अल्लाह पाक ने कहा एक भूल जाए तो दूसरी याद करवा दे। एक ना दे सके गवाही प्रॉपर तरीके से तो दूसरी की गवाही तो मौजूद हो। लेकिन बेहतर यही है कि इन मामलात में औरतों को ना बनाया जाए गवाह, मर्दों को ही बनाया जाए। सबब मैंने भी आपसे डिस्कस किया है, औरतों के हालात डिफरेंट होते हैं। औरतें मुख्तलिफ तरह की कंडीशन से गुजरती हैं जो मर्दों की नहीं होती। शादी होकर चले जाना, फैमिली ही चेंज हो गई, अब उस फैमिली का माइंडसेट क्या है क्या नहीं है आपको नहीं पता होता। ये तो वक्त आएगा तो पता लगेगा ना कहाँ ब्याह कर जाना है। तो वो आने दे ना आने दे, हो सकता है जिन लोगों के हक में गवाही हो उनके साथ ससुराल वालों की दुश्मनी हो और वो इस वजह से गवाही ना देने दे। कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा, फिर और फिजिकल कंडीशंस भी तो हैं। प्रेगनेंसी है, वो औरत प्रेग्नेंट है, वो अपने आप से बेजार है, खड़ी नहीं हो पा रही, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ है, कहाँ से आकर गवाही देगी। उसका छोटा सा दूध पीता बच्चा है, कितनी बार वो उसको छोड़कर आ सकती है, और इन गवाहियों में तो बार बार जाना पड़ता है। तो कुछ भी हो सकता है, मर्दों को ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसीलिए आप देखें कि मर्दों की हेल्थ औरतों की निस्बत ज्यादा स्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। औरतें जो हैं वो 40-45 साल के बाद उनकी सेहत में फर्क आता है। लिहाजा आप अक्सर खवातीन का सुनेंगे। क्यों आता है? ये सारा जो एक नेचुरल सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्क आता है। आप देखिए मेनोपॉज हो जाने की वजह से खवातीन को फर्क पड़ता है। बच्चों के डिलीवर होने से भी जाहिर है बॉडी पर फर्क तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हेल्थ को मुतासर करती हैं। मर्दों को इससे नहीं गुजरना पड़ता, उनकी हेल्थ स्टेबल रहती है। फिर उनकी जिम्मेदारियां मर्दों की ऐसी नहीं है, ये नहीं कि बंदा अपने काम से छुट्टी ली तो चला गया, आसान है। औरत ने कहीं जाना है, आप आम जिंदगी में भी देखें, मर्द को जाने के लिए सिर्फ एक चीज मैनेज करनी है, अपना काम। अगर उसने अपने काम से छुट्टी ले ली है तो ही इज फ्री। लेकिन औरत वो नहीं फ्री हो सकती ना। घर है, बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा है, कोई घर में बुजुर्ग है, वो अपने जिनके कोई जॉब नहीं भी करती ना, उसने कह दिया मैंने आज जाना है, मगर उसको जाते जाते भी 10 छोटे छोटे काम करने हैं। फिर उसने चले जाना है, वो जहां गई है वहां बैठी, वहां भी फोन आ रहा है, अम्मी फलानी चीज कहाँ पड़ी है, बेटी फलां चीज कहाँ रख गई हो, बेगम फलानी फाइल कहाँ है। औरत फ्री नहीं हो सकती, बल्कि मैं मजाक करती होती हूँ कि कहती मैं मजाक करूं बट इट्स अ रियलिटी कि बंदे बीमार होकर रेस्ट कर सकते हैं, औरतें बीमार होकर भी रेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि आपकी आंख लगी है और शक्कर कहाँ पड़ी है, आप फिर अभी सोने लगे हैं और फलानी शर्ट कितने पई है, आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ज्यादा अगलों को जरूरत है और चीज रखी आपने हुई है। तो औरत की जिम्मेदारी ना बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से अल्लाह ने स्पेयर किया है औरत को, महरूम नहीं किया जी, आसानियां दी हैं। क्योंकि अल्लाह हकीम है और अल्लाह जानते हैं कि औरतों पर ये सारे बर्डन है। लिहाजा आप एक दिन कहीं चले जाएं तो घर में जो बुजुर्ग है ना, उसकी दवाई नहीं उसको मिली होती है ना, गाल आते हैं तो कि क्या हुआ क्या हुआ, वो कल दवाई दी थी अब्बा जी को, तबीयत उनकी कैसे खराब हो गई है, अच्छा इस टाइम भी दवाई दी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं। आप कह कर जाएं, आप चीजें निकाल के रख कर जाएं कि ये मैंने दवाई निकाल के रख दी है, ये कर दिया है, ये इतने बजे तुम दवाई दे देना, फिर भी याद नहीं रहता घर वालों को। कोई जानवर है तो वो भूखा होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। कूड़े वाला आके वापस चला जाएगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा।
تو یہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے مینج کرنا، اسی لیے اللہ پاک نے اسپیئر کیا ہے۔ بظاہر یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہے، مگر یہ چھوٹی نہیں رہتی اس وقت جب فریکوینٹلی آپ کو جانا پڑے۔ اور گواہیوں میں تو بڑے چکر پڑتے ہیں، خاص طور پر دیوانی مقدمات، یہ تو سال ہر سال چلتے، تو پھر ہر دوسرے دن جا رہے ہیں، ہر دوسرے دن جا رہے ہیں، ہر دوسرے دن جا رہے ہیں، کیا کریں جا جا کر بھائی؟ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ بہتر ہے مردوں کو ہی رکھو، اگر مجبوری ہو جائے تو خواتین کو گواہ بناؤ۔ وَلَا تَسَّمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، تم لوگ چاہے رقم کم ہو چاہے رقم زیادہ ہو، لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اگر ایک لمبے عرصے کے لیے تمہیں ڈیلنگ کرنی ہے تو اس کو ضرور لکھ لو۔ کیوں لکھ لو؟ کیونکہ یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، کوئی کسی کے اوپر بات نہیں ڈال سکے گا، کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا، دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ مرنا نہیں ہے، فرض کریں میں نے قرض لیا اور میں مر گئی، اب میرے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ ریٹرن ڈاکیومنٹ سے پتا لگے گا نا۔ تو یہ ڈیٹیلنگ ضروری ہے، یہ اچھا ہے۔ وہ اقوام شہادہ، شہادت کے لیے زیادہ درست ہے، یعنی کہ جب آپ کے درمیان فرض کریں بحث ہو گئی، بھول گئے، یا جس نے قرض لیا تھا وہ مر گیا، اس کے بچے کہتے ہیں پتا نہیں ہمیں تو نہیں پتا، تو آپ ڈاکیومنٹ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ڈاکیومنٹ، یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے، اب ڈاکیومنٹیشن ہے نا، اس کی وجہ سے چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گواہ کے لیے بہت اچھا ہے کہ گواہ خود 15 سال بعد گواہی کے لیے بلایا گیا اور گواہ کو یاد ہی نہیں کہ ڈیٹیل کیا تھی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کاپی نکالے گا، فوٹو کاپی، اور اس کو بیٹھ کر پڑھے گا، اور اس کو پتا لگ یاد آ جائے گا، ہاں 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 یہ ہوا تھا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تمہیں شک و شبہ نہ رہے۔ پیمنٹ کر دی اور یاد نہیں ہے میرے جیسوں کو کہ کر دی کہ نہیں کرتی، اور پیمنٹ نہیں کی اور لگ رہا ہے میں نے پیسے دے دیے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس شک و شبے سے بھی بچ جاؤ گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اگر تمہاری حاضر تجارت ہے، حاضر دین دین ہے، تو پھر کوئی تم پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ تکتبوہا، کہ تم نہ لکھو، یعنی فوری لین دین ہے، اسی وقت لے کر ختم کر لیا، اس کے لیے اصل میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس آپ کی چیز موجود ہونا ثابت کرتا ہے نا کہ میں نے آپ سے بائی کیا ہے، تو اس لیے اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک عرصے کے لیے لین دین کرنا ہے تو بہتر ہے تم لوگ لکھو۔ جب خرید و فروخت کرو اس پر گواہ بناؤ، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خرید و فروخت پوشیدہ چھپ کر نہیں ہونی چاہیے، خرید و فروخت جو ہے وہ سرے عام ہونی چاہیے، جیسے مارکیٹ میں ہے، آپ مارکیٹ میں جا کر اوپنلی چیزیں بائی کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ چیزیں بائی، یہ دکان ہے یہاں پر یہ چیز بکتی ہے، جو یہاں پر آیا ہے کسٹمر ہے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ پرسنل لیول پر کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے گواہ ہونی چاہیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچایا جائے گواہ کو اور نہ ہی لکھنے والے کو۔ اچھا، یہ جو اللہ نے کہا نا خرید و فروخت کے گواہ بناؤ، یہ ضروری ہے۔ ابھی تو اس طرح سے ذرا کم ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ نسل در نسل چلتی تھی کیونکہ چیزیں کم بنتی تھی نا، تو اب یہ جو ڈھال ہے فلاں کی ہے، یہ تلوار فلاں کی ہے، اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں نظر آئے گی تو اگلے سوال کریں گے نا، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ چوری کی ہے تم نے؟ ذہن میں وہم آئے گا نا۔ تو اسی لیے اگر آپ نے کوئی چیز سیل کی تو اوپنلی کرے تاکہ اگلوں کو پتا ہو کس نے بیچی، اس نے خریدی، کوئی کسی پہ شبہ نہ کرے۔ برتنوں کا بھی نسل در نسل چلتے تھے کیونکہ اتنی مارکیٹ میں چیز نہیں تھی نا، اب تو اور باتیں ہو گئی ہیں، ہماری امیوں تک ایسے تھا کہ یہ جو چادر ہے یہ میری دادی نے میری یہ یعنی کہ میری دادی نے اپنی بیٹی کو، ان کے میری پھپھو کو دی تھی، میری پھپھو نے مجھے دی ہے تحفے میں۔ اب ہے کیا؟ وہ کڑی ہوئی چادر ہے لیکن ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، احتیاط کے ساتھ استعمال کی، اور آگے سے آگے وہ 3 3 4 4 نسلوں سے چیزیں چلی آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ چیزیں ہینڈ میڈ ہوتی تھی نا۔ اب تو ہر چیز جو ہے وہ ریپلیسمنٹ والی ہو گئی ہے نا، اے سٹو تے نویں لایا، سٹو تے نویں لایا، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ پھر چیزیں لوگ پہچانتے تھے، نسلوں سے پہچانتے تھے، زیورات، کپڑے، یہ چیزیں نسل در نسل چلتی تھی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز اگر کسی کو کوئی بیچے تو پھر اوپنلی بیچے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس نے بیچی، اس نے خریدی، سمجھ گئے؟ وَإِن تَفْعَلُوا، اچھا جی، بیچ میں اللہ نے کہا کہ کاتب اور شہید کو
गवाह को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इनके डराया धमकाया ना जाए कि खबरदार तुमने नहीं लिखना, या तुमने रकम घटा के लिखनी है, या अगर तुमने गवाही दी तो हम तुम्हारा खानदान उड़ा देंगे, वगैरह वगैरह। अगर किसी ने डरा धमका कर उनसे कोई गवाही चेंज कराई या तहरीर चेंज कराई, तो उसका जिम्मा फिर डराने धमकाने वाले पर, ठीक है, उसका जिम्मा फिर कातिब और गवाह पर नहीं है। क्योंकि अच्छी बात है कि कातिब और गवाह इस आजमाइश के बावजूद डटे रहे, पर हर बंदा तो इतना अजीम हौसलामंद नहीं हो सकता। अगर अल्लाह माफ करे किसी के बच्चे को उठा लिया जाए और उसको कहा जाए कि या तो तुम हमारा काम करो या फिर हम तुम्हारा बच्चा मार देंगे, तो हर कोई अब हुसैन तो नहीं हो सकता अलैहिस्सलाम। हर बंदे का लेवल है, वो डर जाएगा, जाहिर है वो वही करेगा कि भाई ठीक है मैं कर देता हूँ चेंज। तो अगर डरा धमका कर, ताकत का इस्तेमाल करके किसी से कुछ गलत कराया गया, तो बुनियादी तौर पर उस पर उसका कोई जिम्मा नहीं। वइन तफअलू फइन्नहु फसूकुम बिकुम, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर बहुत बड़ा गुनाह आएगा। कैसा किया? अगर तुमने डरा धमका कर गवाह से गवाही चेंज कराई या फिर कातिब से तहरीर चेंज करवाई, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें गुनाह अजीम होगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। किस मामले में भैया? हर मामले में। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? लेन देन कैसे करो, लेन देन के आदाब सिखा रहा है। और अल्लाह के सिखाए हुए आदाब को जब हम छोड़ देते हैं, फिर हम धोखा खाते हैं। और फिर हम नॉर्मली लोग ये प्ली लेते हैं नॉर्मली कि भाई हम तो अगले पे बड़ा भरोसा करते थे। तो ये सारे हुक्म मुसलमानों के लिए तो हैं। कर्ज लेने वाला भी मुसलमान है, देने वाला भी मुसलमान है, गवाह भी मुसलमान है, फिर भी अल्लाह कह रहे हैं ये सब कुछ करो। क्योंकि शैतान खून में गर्दिश करता है ना? तो कोई कभी भी किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। दुनिया में भाई बड़ी मिसालें मिलेंगी, बेटों ने बापों से दस्तखत करा लिए झूठ, यानी कि किसी बहाने से कि अब्बा जी ये फलाना पेपर है, इस पे दस्तखत कर दो। केस एक जब मैं लॉ पढ़ रही थी तो केस था कि बेटे ने बाप से कहा कि ये जो है ना सोसाइटी के पेपर्स हैं, कि वो यानी कि वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उसके लिए परमिशन ले रहे हैं, तो दस्तखत कर रहे हैं। तो बाप ने, नजर कमजोर थी तो बेटा था सगा, तो सोचा ही नहीं, उसने ऐनक नहीं लगाई, उसने वैसे ही दस्तखत कर दी। पेपर्स प्रॉपर्टी के थे, उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तो बहुत कुछ होता है जी दुनिया में। और ज्यादातर आप देखें बेटे बापों को धोखा देते हैं, होता है ऐसा, या भाई भाई को, क्योंकि वारिस होते हैं ना एक दूसरे के, तो धोखे देते हैं। अब्बा जी बीमार, एक केस मैंने पढ़ा था, काफी लंबा चला, फिर खैर उसका फैसला हुआ था। तो उसमें ये हुआ था कि सिंध हाई कोर्ट का वैसे वो केस था कि इनके चार भाई थे। एक भाई बाप की बहुत खिदमत करता था। तो जब अब्बा जी ज्यादा बीमार हुए और हॉस्पिटल में थे, तो खिदमत तो वो करता था, वो हर वक्त पास रहता था। उसने अब्बा जी के अंगूठे लगा लिए सारे पे, वसीयत लग बनवा कर उसके ऊपर अंगूठे लगवा लिए, वकील को साथ में ला लिया, सारी जायदाद अपने नाम करा दी। भाइयों को पता ही नहीं। वो जब अब्बा जी फोत हो गए तो वसीयत निकली, वसीयत का भाई भाई वसीयत कहाँ से आ गई? वो तो अब्बा जी ने किए, देखो अब्बा जी के तो यानी कि अंगूठे भी लगे हुए हैं। अब लीगली तो डॉक्यूमेंट बन गया ना, फिर वो बड़ा केस चला था। खैर उसका फ्रॉड साबित हो गया था, पर बड़ा टाइम लगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जी। अब आप देखें, बेटा भी तो मुसलमान है और सगा बेटा है, तो बेशुमार मामले मिलेंगे जी। आप भाई भाइयों को धोखा दे रहे हैं। अभी रिसेंटली जानने वालों का एक मसला चल रहा था कि एक भाई बाहर थे और एक यहाँ थे। तो जो बाहर वाले थे वो पैसे भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक घर बना लो यहाँ पर ना, मैं चाहता हूँ एक घर बन जाए, तो आप कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर दूंगा। तो वो वैसे भेजते थे, उन्होंने घर जमीन दी, घर बनाया सब कुछ, मगर उन्होंने सब कुछ अपने नाम पर किया। और भाई को ये प्ली दी कि भाई आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ, तो फिर आप कैसे बार बार आएंगे? तो बहुत कुछ बीच में डीलिंग्स है। अब जमीन भी उनके नाम पर, घर भी उनके नाम पर। अब यानी कि बड़ी अच्छी पोस्ट सोसाइटी में 1.5 कनाल का घर है। तो खैर वो जो भाई यहाँ पर थे वो फोत हो गए। तो अब वो, उन्होंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ तो मेरी जायदाद मेरे नाम कर दें। तो उनकी जो बेवा है, उन्होंने क्या किया, वो घर बेचकर, क्योंकि उनके शोहर के नाम था तो किसको ट्रांसफर होना था, उन्हीं को ना, तो वो घर बेचकर बच्चे लेकर चली गई ढूंढते फिर वहां। यानी कि आप लड़ ही सकते हैं ना, लीगली तो जायदाद उनके शोहर की थी, हकीकतन किसकी थी, दैट्स अनदर इशू।
लेकिन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लीगली तो उनके नाम थी ना। तो किसकी वरासत बनी? उनकी बीवी बच्चों की। उन्होंने बेचा और वो अपने फैमिली में वापस चली गई। अब आप लड़ तो सकते हैं मगर प्रूव नहीं कर सकते। तो ये और इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। तो ज्यादातर फ्रॉड सगे सगों के साथ करते हैं, क्योंकि माली मामलात हमारे अपने सगों के साथ होते हैं ना, राहगीरों के साथ। मेरा मुझसे आप क्या लेंगे? कोई मेरे मेरे माल पर आपका हक नहीं है, आपके माल पर मेरा हक नहीं है। जहां हक होगा वही हम मसला पैदा करेंगे ना। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा लिखवा लो। लिखवा लो। भरोसा अच्छी चीज है, लेकिन लॉ उससे ज्यादा अच्छी चीज है। रिश्ते टूटने से बेहतर है कि आप बैठकर एग्रीमेंट साइन करें। वाइन तफलु इन्नहु फसूकुम बिकुम। अच्छा सॉरी, हाँ रिपीट हो गई कि अगर तुम ज्यादती करते हो गवाह के ऊपर और कातिब के ऊपर तो तुम्हें गुनाह होगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है लेन देन के तरीके, तो इन पर अमल करो। ये वाली कहानी मत सुनाया करो कि तुम्हें भरोसा है, और जब नहीं लिखवाया और उसके बाद तकलीफ हुई तो फिर अब शिकवा ना करो। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानता है। यानी कि अल्लाह कहते हैं, ये जो तुमने कहना ना कि मेरे रिश्तेदार थे, मैं तो जानता था, मैं तो भरोसा करता, ही तो दीनदार बड़ा था। तो अल्लाह कहते हैं मुझे सब पता है, कौन कितना दीनदार है, कौन कितना सच्चा है, मैं सब जानता हूं, मगर फिर भी मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि ये काम करो। कुछ साल पहले, तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ मेरे जानने वालों में। उन्होंने कहीं कारोबार में पैसे सबने लगाए और वो सबके डूब गए। तो जो साहब लगा रहे थे उनकी वाइफ मेरी स्टूडेंट थी, है अभी भी। अमेरिका में, लंदन में वो लोग होते हैं बेसिकली। तो उन्होंने ही सबको कहा कि आप लगाएं, तो लगाए। अच्छा एनीवेज वो उनसे बात हुई कि कैसे, मैंने कहा ये हो गया, सब अफसुर्दा है, अपसेट है। तो वो कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं उस्ताजा, जिस बंदे के पास इन्वेस्ट करवाए हैं ना पैसे, मेरे हस्बैंड, वो इस कदर नेक आदमी है, इस कदर नेक आदमी है कि हम तो सोच भी नहीं सकते वो किसी का पैसा खाएगा। अब उस बंदे के साथ आगे फ्रॉड हो गया बजाहर। हकीकत तो अल्लाह को पता है, क्योंकि मैं यहाँ, वो लोग वहां। मैं तो 100% नहीं जानती, लेकिन बात यह है, किसी का भी दीनदार होना। अगर आप दीनदार हैं तो आप दीन पे चलते क्यों नहीं? आपने दीनदार होने को दीन पर ना चलने का बहाना क्यों बनाया? आप दीनदार है तो दीन पर चले। ये कैसी दीनदारी है कि आप कहते हैं चूंकि मैं दीनदार हूं तो मुझसे दीन के ऊपर चलने का तकाजा ना करो, मैं तो दीनदार हूं। ये क्या मसला है? तो वो, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया मेरा ख्याल है, ये कोई, हाँ नहीं नहीं, बहुत साल हो गए। 2024 चल रहा है, तो ये 2022-23 में हुआ। तकरीबन 20 साल होने वाले। कुछ भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सका। एक तो वैसे भी पैसे एक दूसरे के भरोसे पर इन्वेस्ट किए थे, और उन्होंने भी आगे भरोसे पर आगे भरोसा, आगे भरोसा, आगे भरोसा। तो भरोसा दर भरोसा सबके साथ ही फ्रॉड हुआ। सबने अपने पैसे डुबोए। तो नहीं करने चाहिए ये काम, नहीं करने चाहिए, ये हवाई किस्म के काम नहीं करने चाहिए। वइन कुन तुम अला सफरिन, अगर तुम मुसाफिर हो, वलम तजिदू, ना तुम पाओ, कातिबन लिखने वाला, फरिहान रहन रखना, मकबूजतन कब्जा में दी हुई चीज को। अगर तुम मुसाफिर हो, सफर पर हो, और तुम्हारे पास कोई लिखने वाला भी मौजूद नहीं है, तो तुम रहने मकबूजा कर सकते हो। यानी कि कर्ज चाहिए, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो अपनी कोई कीमती चीज अगले को देकर उसके अगेंस्ट कर्ज ले सकते हो। कि भाई मेरी ये 1 लाख की घड़ी है, मुझे 50,000 कर्ज चाहिए, आप ये घड़ी रख लें, मुझे 50,000 दे दें, मैं 50,000 देकर अपनी घड़ी ले जाऊं। तो ये जायज है जी, कोई हर्ज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई बार ऐसा कर्ज लिया। आपने पढ़ा होगा कि भाई जीरा आपने अपनी रहन रखवाई हुई थी, उसके अगेंस्ट आपने कर्ज लिया था। फाइन आमीना, फिर अगर एतबार करे, भरोसा करे, बाजुकुम बाजन, एक दूसरे पर तुम में से, फल यू अद्दी, तो चाहिए कि अदा कर दे, अल्लजी, वो जो, ई तुमीना, अमानतदार बनाया गया, अमानतहू, उसकी अमानत को। जब एक दूसरे पर भरोसा करे तो जिस बंदे को अमानतदार बनाया गया है उसे चाहिए अमानत मालिक को वापस सौंप दे। भाई घड़ी है 1 लाख की, रकम है 50,000 की, आधो आध का फर्क है ना। अब नीयत खराब हो सकती है, वो बाद में मुकर जाए कि भाई
میں نے تو تمہیں کوئی قرض نہیں دیا، نہ میرے پاس کوئی گھڑی ہے، کیونکہ اس کو تو 50,000 کا سیدھا سیدھا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، تم پہ بھروسہ کیا ہے تمہارے مسلمان بھائی نے، تو دھوکہ مت کرنا۔ نارملی رہن مقبوضہ پر قرض دینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے باقاعدہ یہ ایک فیلڈ ہے۔ تو ہوتا نہیں ہے دھوکہ اس میں، لیکن بہرحال اللہ نے سمجھایا ہے کہ کوئی قیمتی چیز دے کر نیت خراب مت کرنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، جو اللہ ہے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، دونوں طرح سے جملہ صحیح ہے جی۔ اچھا، رہنے مقبوضہ کی بھی لکھت پڑھت ہو سکتی ہے، اب تو ہوتی ہے، اس زمانے میں اللہ نے کہا کہ اگر لکھنے والا میسر نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا، پورے پورے شہر میں 8-10 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور فرض کریں ان میں سے کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس کا حل دیا ہے۔ آج کل تو یہ مسئلے ختم ہو گیا، آج کل تو اس طرح کا لین دین بھی جو ہے نا وہ لکھ کر کیا جاتا ہے۔ ولا تکتموا الشہادۃ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، یعنی کہ جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہن کا لین دین کرو تب بھی گواہ بناؤ۔ گواہ تو بنا سکتے ہیں نا، گواہی کے لیے تو لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں، جو اپنی چیز رہن رکھ رہا ہے اس کا کوئی گواہ ہونا چاہیے، کوئی ساتھی ہونے چاہیے، اور جو لے رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوگا، تو گواہ موجود ہونے چاہیے۔ پھر ان گواہوں کو جب بلایا جائے، اگر کیس بن جائے اور ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ موجود ہو۔ تو گواہ کا بڑا ذمہ ہے کہ وہ گواہی کو چھپائے گا نہیں کسی بھی ریزن سے۔ جس بندے کے حق میں گواہی ہے اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا، تب بھی ہم اپنا فرض ادا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، دل اس کا، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسے گناہ ہوگا بھائی، وہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے گواہی چھپائی ہے۔ تو گواہی اگر آپ کے پاس ہو تو چھپانی نہیں چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس گواہی ہے اور تم نے کسی ضد کی وجہ سے چھپا لی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ بہت ساری سازشیں ہو سکتی ہیں جی، فرض کریں کسی کی کوئی چیز بہت قیمتی تھی اور اس نے رہن رکھوا دی، اور جو گواہ بنایا اسی کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے رہن لینے والے کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ فراڈ کرتے ہیں، تو آدھا پروفٹ تیرا آدھا پروفٹ میرا، کچھ بھی ہے، دنیا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو تم جو کر رہے ہو کوئی نہیں جانتا، تو میں تو جانتا ہوں، تو میرے پاس تو تم نے آنا ہے، تو جب میرے سامنے کھڑے ہوگے تو مجھے کیا جواب دو گے؟ سوچ لو، دھوکہ نہ دو ایک دوسرے کو۔ یہ جی آیت دین کے احکام ہے، اس میں سے بہت سارے احکام نکلتے ہیں فقہی، لیکن وہ بحث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں، کوئی وقت وقت اللہ رحم فرمائے کوئی آئے گا، یعنی کہ تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا، وہ فقہی احکام ہیں۔ اور یعنی کہ اس کے جو لین دین کی سارا سسٹم ہمارا چلتا ہے نا، وہ انہی آیات پر بیس کر کے بنایا گیا ہے۔ تو موٹی بیسک باتیں یہی ہیں، اس میں کچھ باریکیاں ضرور ہیں، مگر کسی وقت کوئی چیز ضرورت کے مطابق پیش آئے گی تو ڈسکس کر لیں گے، ابھی غیر ضروری ہے۔ آج یہیں تک پڑھیں گے جی، کل آپ کو چھٹی ہوگی اور پرسوں آپ تشریف لائیں گے، سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پرسوں آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، سیکنڈ پارے کے سیکنڈ ربع کا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔